Hi Ram to all of you. If there is something you feel like you need to discuss, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं और नहीं तो फिर हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे उसमें आगे बढ़ जाएंगे. Yes, anything, anyone? Yes, ma'am. We have to decide the topic of debate. बेटा डिबेट के लिए मैंने कहा था कि हम लोग ये काम बाद में करेंगे. पहले हम लोगों का फोकस किस चीज पर था? सबसे पहले क्या सबमिट करना है? चार्ट. चार्ट सबमिट करना है. चार्ट के लिए मैंने आप लोगों से कहा था आप लोग अपना अपना टॉपिक मुझे बताएंगे मंडे तक. ठीक है, पहली प्रायोरिटी पे हम ये काम करेंगे. अच्छा, चैप्टर कौन सा चल रहा था हमारा? हिस्ट्री. ठीक है, जिन लोगों ने टॉपिक्स डिसाइड कर लिए हैं गुड. ठीक है, हम लोग उसके बारे में करेंगे बातचीत. पहले हम लोग मंडे को तुम लोगों का प्रोजेक्ट वर्क से सॉर्ट करना शुरू करते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस प्रोसीजर में. जो काम करके बैठ गए हैं गुड. यस, वी वर डूइंग रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, राइट? Yes, ma'am. ओके, हम लोगों ने इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन देख लिया था. अब हम लोग देखते हैं बिल्डिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड टैंक्स. ओके, Have you ever seen or been to a medieval temple or mosque? Have you ever wondered who built these magnificent structures? And what was their purpose of doing so? Let's find out. This is Rajarajeshwara Temple located in Thanjavur. It was built by King Rajarajadeva of the Chola dynasty. What you see here is the Kandariya Mahadev Temple. It is located in Madhya Pradesh. It was constructed by King Dhangadeva of the Chandela dynasty. This is the Jama Masjid of Delhi, one of the largest mosques in India. It was built by Mughal Emperor Shah Jahan. Did you notice a common thread between all these images? All these are places of worship. They were constructed by kings and rulers who spent huge amounts of money and resources for the construction. But why did they do so? Construction of such large monuments demonstrated three things: wealth, power, and the devotion of the king. Today, India, as a secular nation, makes clear division between religion and the state. But in medieval India, religion was very much tied to political power. Religion was a means to show power. That was one reason many rulers built places of worship when in power. Let us examine the case of Raja Rajeshwara Temple of Thanjavur. As mentioned, it was built by King Raja Rajadeva. The deity worshipped in the temple was the king's royal deity, Raja Rajeshwaram. Have you noticed something here? The names of the temple, king, and his deity all sound alike, right? It was no coincidence. The king did take the god's name. Why? Firstly, it was auspicious. Secondly, he wanted to appear like a god. Besides, through the rituals in the temple, one god, Raja Rajadeva, honored another god, Raja Rajeshwaram.
Did all these help the king in any way? The answer is yes. All these helped create an impression that the king was bringing divine rule on earth. Many Hindu kings claimed to be incarnations of gods. That is to say, the king emphasized his moral authority to rule by establishing a close relationship with God. This helped them sustain their power in times of political change. However, there was a difference between Hindu kings and Mughal kings. Mughal kings didn't claim to be incarnations of God. Many of them, instead, were seen as embodiment of prophetic qualities. They believed that God was the ultimate, He was the lawmaker and creator. What you see in this picture is the Golden Temple of Amritsar. Take a closer look. Can you see water around the temple? It is the holy tank attached to the temple. Tanks and water reservoirs attached to worship places were common in the medieval period. Rain had strong religious connotations in those times. Plentiful rains were a sign that the king was just. Moreover, kings made every effort to make water available to ordinary people. This was done by constructing water tanks and reservoirs. Such tanks and reservoirs were means of harvesting rainwater. Ordinary people benefited hugely from such water reservoirs, especially in times of water shortage. Don't you think people of those times had admirable foresight and wisdom? Which of the following was Yes, any question to anyone? हम लोगों ने अभी जो इसमें वीडियो देखा, what was the significance of worshiping deities of king and allies together in the royal temples? See, the basic idea was that the king wanted to portray himself as a big person. कि ना मैं भगवान के बराबर हूं, या मैं भगवान के बहुत करीब हूं, या मैं भगवान के जैसा ही हूं. ऑस्पिशियस मतलब जिसे हम शुभ कहते हैं ना हिंदी में. समथिंग दैट इज समथिंग दैट ब्रिंग्स गुड लक, जो शुभ होती है उसे हम इंग्लिश में ऑस्पिशियस कहते हैं. दैट इज द वर्ड वी यूज फॉर इट. एंड फॉर वर्शिपिंग डेटीज एंड किंग, अब देखो अगर कोई मंदिर है वहां पर जाकर आपको किंग की भी या किंग की फैमिली की भी आपको मूर्ति मिल रही है, सो यू आर बेसिकली ट्रीटिंग देम लाइक गॉड ऑल्सो. So that was the whole idea behind kings, their allies and the deities, everybody being in a temple. अभी देखो ऐसा है कि हम ये सोचते हैं, no, see, I'm not saying that they believed that the king is God, but they believed the king is godly. God और godly में फर्क होता है कि king क्या है, God के समान है, उसी के बराबर कैसे है. किंग्स रेजरवायर बेसिकली वो जगह होती है जहां पर आप कुछ चीज रिजर्व करके रखते हैं. यहाँ पर जो है पानी के रेजरवायर की बात हो रही है. जो किंग्स एंड क्वींस हुआ करते थे, दे यूज्ड टू क्रिएट प्लेसेस जहां पर जो है टैंक्स जैसे कुछ बना दिए जाते थे. दे आर लाइक अ रेजरवायर. Thangdev, let me see what is exactly that. He was a king of Chandela dynasty. He must have constructed that Kandariya Mahadev temple. Are they really devoted towards God? I'm not getting your question, Laksh. Question समझ में नहीं आया मुझे तुम्हारा. थोड़ा elaborate करके पूछो. मैम मेरा मतलब ये है कि मैम वो लोग मतलब सच में भगवान के लिए थोड़ा सा उनके अंदर से था, इसलिए उन लोग ने इतने सारे भगवान की चीजें बिल्ड करी. पब्लिक रिलेशन समझते हो तुम? पब्लिक रिलेशन जो पूरी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी होती है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचे. देखो इसको इस तरीके से लो कि उस टाइम पे पीपल डिड नॉट हैव मच टू डू. देखो दिन में तुम काम कर रहे हो, ठीक है, जो भी अपना खेती बाड़ी का काम कर रहे हो, या फिर जो भी पॉटरी का काम कर रहे हो, या जो भी तुम क्राफ्ट वर्क का काम कर रहे हो,
तुमने काम कर लिया, रात को बिजली तो होती नहीं थी, या शाम के टाइम पर अब तुम लोगों का दिन भर काम हो गया, सो व्हाट विल यू डू, यू विल गैदर फॉर अ सोशल गैदरिंग। सोशल गैदरिंग किस तरीके की हुआ करती थी, तब ऐसी पार्टीज तो हुआ नहीं करती थी, तो ये जो पूजा पाठ है, ये जो भजन कीर्तन है, ये सारी जो एक्टिविटीज हुआ करती थी, दे यूज टू बाइंड द कम्युनिटी टुगेदर। अब जरूरी नहीं है दैट एवरीबडी वाज डिवोटेड टुवर्ड्स गॉड, बट इट वाज मोर और लेस लाइक अ सोशल एक्टिविटी देन अ रिलीजियस एक्टिविटी। हौज सुल्तानी वो होगा मेरे ख्याल से वाटर रिजर्वायर ही होगा हौज सुल्तानी। लेट मी सी कहाँ पर है। यस, इट वाज नोन एज द किंग्स रिजर्वायर, इल्तुतमिश ने बनाया था। सी ये सारे जितने भी रिजर्वायर है ना, बेसिकली बड़े बड़े टैंक्स हुआ करते थे जिसके अंदर जो है पानी को स्टोर करा जाता था। एलैबोरेटली मतलब बहुत डिटेल में समझाना। रूलर्स वर नॉट एग्जैक्टली स्किल्ड और अडेप्ट। द आइडिया वॉज कि भाई अगर मैंने तुम्हें बोला कि मुझे मंदिर बनवाना है, शाहजहां ने खुद खड़े होके वहां पे मार्बल थोड़ी लगाए थे कि नहीं अब इसे यहाँ लगाओ उसे वहां लगाओ। दे यूज टू एम्प्लॉय पीपल, उन लोग ना एम्प्लॉयमेंट देते थे उन लोगों को जो इस चीज में मास्टर है। मैंने सोचा कि भाई मुझे ना एक बढ़िया सा घर चाहिए, अब मैं थोड़ी वहां पे जाके ईंट पत्थर लगाना शुरू कर दूंगी कि मुझे ऐसा घर चाहिए तो मैं ही बनाऊं। आई विल एम्प्लॉय सम पीपल, मैं बढ़िया सा एक आर्किटेक्ट ढूंढूंगी, वो भी वही काम करते थे, एक अच्छा सा आर्किटेक्ट ढूंढते थे जो उसमें एक्सपर्ट हुआ करता था, सब लोग अपने आइडियाज मिलाते थे और फिर जाके एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी जाती थी। तो अब देखो जैसे कि अगर मैंने किसी आर्किटेक्ट को बुलाया उस एरिया में वही सारे मंदिर बना रहा है तो उसका एक अपना स्टाइल है, तो उसी स्टाइल का जो है कंस्ट्रक्शन कर देगा। इन्वेजन मतलब होता है कोई आकर आपके ऊपर हमला कर देता है, अटैक कर देता है, उसे हम इन्वेजन कहते हैं। मोस्टली इन्वेजन में क्या होता है, दे टेक अवे द पावर एंड दे लूट द मनी एंड दे गो बैक। What was the punishment given to people if they did some type of mischief? It depended on place to place, king to king, era to era. We cannot generalize anything for anything. जो हमारा फाहिन था उसने ये बोला था that चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी जो चंद्रगुप्त टू था उसके टाइम पर क्राइम इतने कम हुआ करते थे कि ज्यादातर क्राइम्स की सजा केवल फाइन हुआ करती थी। बेटा दैट इज जियोथर्मल, जो आप जिसकी बात कर रहे हो ना, आई थिंक क्या नाम है उसका, मणिकर्ण। दैट इज जियोथर्मल एनर्जी, वो अर्थ के अंदर की एनर्जी है, वो एक ओरिफिस है, एक गड्ढा है अर्थ के अंदर जहां से जो धरती के अंदर की जो गर्मी है वो निकल रही है। हौज सुल्तानी मैंने अभी बताया एक रिजर्वायर है जहां पर पानी स्टोर किया जाता था। Yeah, what is Chola? Amay, matlab, I am not understanding your question exactly. मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि मैम मैम डज चोला किंग राजेंद्र वन बिल्ड टेम्पल ऑफ शिवा? मैम वो क्वेश्चन था मेरा। अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन है कि राजेंद्र वर्मन ने टेम्पल बनाया था या नहीं? यस मैम। अच्छा ठीक है। चोला टेम्पल्स जो हैं किसकी बात कर रहे हो? राजेंद्र वर्मन, मेरे ख्याल से राजेंद्र था चोला, तो बुक में तो राजेंद्र और राजेंद्र ही तो हैं। बृहदेश्वर टेम्पल की बात कर रहे हो ना तुम? यस मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बेटा बृहदेश्वरा टेम्पल तो जो था वो तो वो तो राजेंद्र चोला ने बनाया था। बुक में भी जो राजेंद्र वन और राजेंद्र की ही बात करी गई है। शिखरा मतलब शिखर, हिंदी का शिखर जो सबसे ऊपर हो। मंदिर में जाते हो तो ऊपर एक टोपी सी नहीं बनी रहती है, उसी को शिखर कहते हैं। बिल्कुल अम्मा, यू डू नॉट नीड माई परमिशन टू आस्क अ क्वेश्चन, पूछो। मैम लाइमस्टोन सीमेंट was used in construction because it is it a fill in the blank?
Yes, ma'am. Okay, मैम I'll need to see this. ये बुक में दिया हुआ है या किसी और सोर्स से देख रहा है बेटा? क्योंकि देखो, अगर मैं अपने जनरल नॉलेज से इसका आंसर देती हूँ तो वो ये है कि बिकॉज दीज मटेरियल्स वर एडमेंटली अवेलेबल एट दैट टाइम. लाइमस्टोन मतलब क्या? चूना. चूना और चूना पत्थर, इसी को यूज किया जाता था कंस्ट्रक्शन के लिए. बहुत इजीली अवेलेबल मटेरियल हुआ करता था वो. कॉन्ग्रीगेशन मीन्स कि जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं. यस. और कुछ? मैम जो सेकंड वाला है ना मैम, व्हाट इज शिकारा? शिकारा नहीं है बेटा, वो शिखर है. यस मैम, उसका आंसर क्या लिखेंगे? तो बेटा जो टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ टेम्पल, इट इज कॉल्ड शिखर. वो आप बुक में देखोगे ना, बुक में डेफिनेशन भी दी हुई है उसकी. थोड़ा सा चैप्टर पढ़ा करो बच्चे, साफ दिया हुआ है उसके अंदर. एक बार चैप्टर पढ़ना, तुम्हें खुद मिलेगा. तुमसे ही पूछूंगी मैं ये क्वेश्चन जब क्वेश्चन आंसर करेंगे. यस सौम्या. My question is, what are the elements of a Mughal charter बाग garden? बेटा आप लोग क्या कर रहे हो, जो पीछे उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, तुम मुझसे वही पूछ रहे हो अभी. पर ये चीज हम कब डिस्कस करेंगे? एक बार जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे ना. थोड़ा सा हम लोग अगर पेशेंस रख ले, इट विल बी बेटर. तुम ही लोग आपस में आंसर कर लो, अच्छा है. चार बाग गार्डन का बेसिक आइडिया ये हुआ करता था कि वो ऐसे बटे हुए हुआ करते थे. चार उसके क्वाड्रेंट हुआ करते थे. बीच में उसमें स्ट्रीम हुआ करती थी. हाँ पूछो बेटा. यहाँ पर बुक में दिया है कि जो यहाँ पर यमुना रिवर थी मैम, तो उसका यूज क्या है? यमुना रिवर वहाँ पर कब बनी थी? बेटा मुझे तुम्हारा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, थोड़ा और मुझे जरा समझाने की कोशिश करो. मैम ये चैप्टर में दिया है यमुना रिवर के बारे में, जो मुगल एम्पायर के पास में थी. समझ में आया. बेटा मैं अभी भी तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ. रिवर जो है, रिवर तो उसकी टोपोग्राफी अलग होती है. रिवर कहीं पर क्यों है उसका कोई जवाब नहीं है. वो टोपोग्राफी की वजह से है. रिवर सिटीज से पहले से है. मुगल्स ने अपनी सिटीज कंस्ट्रक्ट करी रिवर के आसपास. इफ दैट सेटिस्फाइज योर आंसर इट्स ओके, नहीं तो फिर और अगर तुम कुछ और पूछना चाहते हो जो मैं समझ नहीं रही हूँ, यू कैन ट्राई मोर. यस व्यू, मुगल गार्डन, ताजमहल कैन बी कॉल्ड अ चार बाग क्योंकि वो चार क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है. Sometimes killed some people at their king, some people at their punishment, some so did it made a bad image of king for the people. देखो आरुष, हम लोग ना किस समय की बात कर रहे हैं? हम उस समय की बात कर रहे हैं जबकि सोसाइटी किस वजह से रूल की जाती थी? साइंटिफिक नॉलेज कम थी, सुपरस्टिशंस ज्यादा थे, पीआर जो था वो बहुत डिफिकल्ट टू रीच था, लेकिन वंस रीच्ड उसको आप इतनी इजीली कंडेम नहीं कर सकते थे. इंफॉर्मेशन इतनी इजीली पोर्ट्रे नहीं होती थी. आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ द सेम टाइम. जो एग्जीक्यूशंस होते थे ना, दोज वर अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. लोग खुशी खुशी जाते थे देखने के लिए, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं था एंटरटेनमेंट के लिए. मतलब किसी को सजा मिली है, somebody's head is getting cut off, तो वहां पर लोग मार्केट में इकट्ठा होते थे देखने के लिए. इट वॉज फन फॉर देम. और देखो ऐसे ही किसी को ना, ऐसे नहीं होता जैसे हमको मूवीज में दिखाते हैं ना कि राजा को गुस्सा आ गया. नो नो नो, वी कैन नॉट कॉल इट चार मीनार, क्योंकि उसमें बीच में गुंबद भी तो है. यस. अब देखो क्या हो रहा है कि वो जस्टिफाई करके किया करते थे कि ना हम किसके नाम पे कर रहे हैं? हम धर्म के नाम पे कर रहे हैं. या हम किस लिए कर रहे हैं? हम कंट्री के लिए कर रहे हैं. हम किसके लिए कर रहे हैं? हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं. पीआर बहुत जरूरी है. पब्लिक रिलेशंस की जो बात होती है ना, और अगर आप ये कह रहे हो कि तुमने चोरी करी, तुम्हारा हाथ काट दिया जाएगा, तो पूरी सोसाइटी डर के रहती है कि हाँ चोरी करना गलत है, उसकी वजह से मेरा हाथ काटा जा सकता है. और हीनस पनिशमेंट्स मोस्टली पता है उस टाइम इसलिए नहीं देते थे क्योंकि लोग वैसे भी ज्यादा जीते नहीं थे. इतने वॉर्स होते थे, इतने फैमिन्स होते थे, इतनी सारी नेचुरल कैलामिटीज हुआ करती थी. अगर कोई थोड़ी सी भी सीरियस बीमारी हो गई तो इंसान मर ही जाता था. लाइफ एक्सपेक्टेंसी वैसे भी कम थी. तो ये पनिशमेंट के तौर पे जो किलिंग्स होते थे वो वैसे भी कम हुआ करते थे. देवर लाइक
बोल बातचीत में ज्यादा समझ में आता है कि अरे बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशन हुआ करते थे, अरे इतने लोग ही नहीं थे उनके पास, वो किसे एग्जीक्यूट करते। ज्यादातर जो मेल पॉपुलेशन हुआ करती थी ना, वो तो जो वॉरफेयर में ही खत्म हो जाया करती थी। यहाँ लड़ने गए भाई, 1000 की आर्मी लेकर गए, उसमें से 100-200 मर गए। द यूज ऑफ यमुना रिवर फॉर मुगल, इट इज फॉर एग्रीकल्चर कह सकते हो, ट्रेड भी कह सकते हो, जो सिटी की वाटर सप्लाई हुआ करती थी वो भी है। बिल्डिंग्स टू पीपल, देखो ऐसा है कि डिपेंड्स ऑन हु द पीपल वर। वो ऐसे राह चलते किसी को बिल्डिंग नहीं दे दिया करते थे कि अरे तेरे पास खाने को रोटी नहीं, चल मैं तेरे को एक महल दे दूं, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन जैसे कोई नोबल है, किसी की फैमिली खत्म हो गई, कोई कुछ बचा नहीं, तो अब इस हवेली का क्या करें, किसको दें, तो अपने किसी फेवरेट नोबल को दे दिया करते थे। और ये जो बिल्डिंग्स के ग्रांट हुआ करते थे, मोस्टली जो टेम्पल के ग्रांट थे, ये ब्राह्मण कम्युनिटी की तरफ ज्यादा जाते थे कि ये पूरा रिलीजियस लैंड है, इसका जितना भी टैक्स आएगा उसे ब्रह्मदेय कहते थे। देखो ऐसा होता था कि इफ जब भी आर्मी वहां पर ना, ऐसी नहीं होती थी कि ना यहाँ पे 1000 पीपल आर लिविंग तो इसमें से 100 की आर्मी होगी, नहीं। जब वॉर होता था तो जितने लोगों के हाथ पैर चल रहे हैं सबको उठा के ले जाते थे कि चलो सब लड़ेंगे। सबको जो है कुछ कुछ भी पकड़ा देते थे कि अच्छा इसी से फसल काटते हो, यही हसिया लेके चलो लड़ाई करेंगे। इट वॉज दैट वे। वो पे ऐसे थोड़ी था कि ना सबको पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं, सबको यूनिफॉर्म दे रहे हैं और तू बिल्कुल यही कलर के कपड़े पहनेगा ही होगा, अरे कुछ नहीं। ऐसा होता था वॉर हो रही है, लड़ने जाओ, नहीं तो एवरीबडी दैट यू लव विल डाई, क्योंकि अगर वहां पे हार गए, अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तो वो हमारी सिटी में घुस जाएंगे, दे विल किल योर फैमिली, दे विल टेक ओवर योर होम, योर बिजनेस विल बी रूइंड। भाई उस टाइम मेंटालिटी बहुत अलग हुआ करती थी। देखो हम अभी क्या है, वी आर लिविंग इन अ वेरी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, और सोसाइटी अभी इस तरीके की, हम किसी चीज के लिए लड़ते नहीं है। हम किस टाइम की बात कर रहे हैं कि आपके लिए जीना ही एक लड़ाई हुआ करती थी। अगर तुम गरीब हो, अगर तुम उस दिन जो है अपना सामान नहीं बेच पाए, देन व्हाट विल यू ईट, दैट वाज प्रॉब्लमैटिक। भाई ट्रेड करना भी इतना आसान थोड़ी था उस टाइम पे, और ऐसा थोड़ी था कि उस टाइम सबको जॉब्स अलग अलग मिले हुए थे। नो। Yes, Agrima, you want to ask something? Yes, मैम sure. जो लोग नॉर्मल पीपल्स होते थे, जैसे हर किंग के पास अपनी एक सोल्जर आर्मी रहती है, पर आप जो कह रही हैं वो जो किंग है वो जो नॉर्मल पीपल होते थे उन्हीं को कुछ भी पकड़ा के वॉर में भेज देते थे कि सोल्जर आर्मी का यूज करते थे। बेटा ऐसा होता था कि ना सोल्जर्स की आर्मी नहीं हुआ करती थी। मोस्टली ऐसा होता था कि किंग के गार्ड्स हुआ करते थे। भाई वो पैलेस को प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी नौकरी है। लेकिन जब लड़ाई की बात आ रही है तो उनके पास स्टैंडिंग आर्मीज नहीं हुआ करती थी। दैट वाज द होल प्रॉब्लम। एम्पायर्स इसीलिए तो खत्म हुए कि देखो फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिटी में रह रही हूँ, मेरी सिटी में 500 लोग रहते हैं, है ना। उसमें से समझ लो कि 200 आर विमेन, समझ लो 50 आर चिल्ड्रन, तो 250 पीपल आर देयर। उसमें से 50 लोग नोबल हैं, वो लड़ाई वगैरह करते नहीं है। कितने बच गए, लगभग समझ लो 150 करीब लोग बच गए। अब उसमें से मैंने 25 को तो नौकरी दे रखी कि ये मेरा घर है, यहाँ पे तुम गार्ड रहो, तो उस 25 के पास तो काम है। लेकिन बाकी के बच्चे लोग हैं, भाई एग्रीकल्चर भी कोई तो करेगा, ट्रेड भी तो चल ही रहा है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो ऐसा थोड़ी कि सारे सोल्जर लाइन बना के बाहर खड़े रहते हैं। सोल्जर्स की जरूरत कब पड़ती है, जब लड़ाई होती है। तो जो ट्रेंड सोल्जर्स होते थे ना, उनकी जो संख्या होती थी वो बहुत कम होती थी। इसीलिए तो कभी भी अगर अचानक से इन्वेजन हो जाता था तो ज्यादातर लोग हार जाते थे, क्योंकि वो लोग जो है लोगों को लड़ाई के लिए तैयार ही नहीं कर पाते थे। हम लोग क्या सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में सोल्जर की क्या इमेज है कि सोल्जर फुल टाइम जॉब है, कि ना पूरे टाइम आप लड़ाई करोगे, पूरे टाइम आप तैयार रहोगे कि लड़ाई करने के लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन ये ऐसा टाइम था कि अगर मान लो जैसे एक किला है, किले की दीवार है, किले की दीवार के बाहर अगर कोई और रूलर आ गया तो भाई जो है अंदर सब लड़ेंगे। ऐसा थोड़ी है कि 4 लोग बिल्कुल ऐसे बैठ जाएंगे कि अरे नहीं मैं तो जो है एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, मैं कैसे लड़ने जा सकता हूँ। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। जब जान पे आती है ना तो सब लड़ते हैं, और लड़ना पड़ता है, बिकॉज इन दैट वर्ल्ड, हम जिस समय की बात कर रहे हैं थोड़ा सा उसके माइंडसेट में जाओ, दैट एवरीबडी हैड टू फाइट फॉर व्हाट दे हैव।
वहां पर कोई भी ऐसे नहीं कह सकता था कि ना मैं तो आराम से बैठा हूं, मैं तो यहीं रहूंगा। भाई इवन द किंग्स यूज्ड टू फाइट इन द वॉर, बिकॉज वो भी एक एसेट ही हुआ करते थे। अगर किंग्स की डेथ हो जाती थी ना, जैसे एक बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, उसमें इट वाज अकबर वर्सेस हेमू। हेमू को तीर लग गया और पूरी आर्मी डर के भाग गई, क्योंकि उनको ये था कि अरे यार अब हमें कोई कमांड करने वाला नहीं बचा, अब हमें कौन बचाएगा। डर के मारे वो लोग भाग गए एंड अकबर वॉन। वॉर्स ऐसे ही होते हैं, वॉर्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। जो हमें मूवीज में दिखाते हैं ना कि बिल्कुल ऐसे हीरो ऐसे गोल घूमता हुआ आए और ये और कुछ नहीं होता है। वो ना बस 5 मिनट, 5 मिनट की मतलब कुछ दिनों की लड़ाई होती है, कई बार कुछ घंटों की होती है। इट जस्ट डिपेंड्स कि किसके पास ज्यादा मैन पावर है। अगर मेरे पास 150 पीपल आर देयर टू फाइट और सामने वाले के पास 70 है, तो मैं जीत जाऊंगी, क्योंकि आई आउट नंबर देम। भले वो कोई बहुत अच्छा लड़ने वाले नहीं हो, क्योंकि किसी को भी लड़ना नहीं आता। और ऐसा नहीं है कि उस टाइम पर किसी को भी लड़ना आता ही नहीं था। भाई कई लोग हंटिंग करते थे, कई लोगों के जॉब्स वही हुआ करते थे। और जब पूरी मेंटालिटी यही है कि कभी भी लड़ने जाना पड़ सकता है, तो ये थोड़ी बहुत तलवार चलाना तो बचपन में सिखाई देते होंगे। भाई तुम्हें भी तो ट्रेनिंग दे ही रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं ना बहुत सारी चीजें। हो सकता है तुम में से आगे जाके कोई मैथ्स नहीं पढ़े, कोई सोशल साइंस नहीं पढ़े, लेकिन एक बेसिक नॉलेज तो आपको होता ही है। तो बेसिक नॉलेज तो फाइटिंग का लोगों को होता ही होगा। पहले ना टाइम बड़े अलग हुआ करते थे, लोगों के पास उतने काम नहीं थे जितने हमारे पास हैं। हमारे पास अलग तरीके के काम है, उनके पास जैसे अभी तुम्हारी एज के जो बच्चे हुआ करते थे, कितने हो गए तुम लोग? 13 साल के हो गए, 14 साल के हो गए? 12 साल। 12, 12, 13, 12, 13, ओहो 11। यार तुम लोग बड़े क्यों नहीं हो रहे हो? चलो 11, 12, 13 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम लड़कों की बात कर रहे हैं, तो 11, 12, 13 का एक ही एज का जो लड़का होता था ना, अपने पापा के साथ फुल टाइम बिजनेस में काम करता था। दिन भर जो है लकड़ियां काटेगा, उसे उठा के घर लेके जाएगा, फिर उसकी मम्मी जो है घर में उसको उसमें डालेंगी चूल्हे में, फिर उनके यहाँ रोटी बनेगी। जो लड़कियां हुआ करती थी वो जो है मम्मी के साथ काम कराएंगी। नहीं तो कई बार तो ऐसा होता था कि बिजनेस में भी लड़कियां साथ देती थी, क्योंकि उस टाइम पर जेंडर सेग्रीगेशन भी अलग तरीके से हुआ करता था। मोस्टली तो ऐसा होता था कि एक 12 साल के बच्चे के पास 2-3 भाई बहन हुआ करते थे, उसको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी पापा काम कर रहे हैं। भाई होता है ना, सोसाइटी का स्ट्रक्चर बहुत चेंज होता है। और उस टाइम पर तो 11-12 साल की उम्र में लड़कियों की शादी भी हो जाया करती थी। अब तुम अपना घर परिवार चलाओ, सोचो कितना मुश्किल है। क्या? बाल विवाह इन हिंदी। बेटा बाल विवाह जो है ना, ये सारा कॉन्सेप्ट अभी आया है, क्योंकि अब हम लोगों में इतना साइंटिफिक नॉलेज है दैट गेटिंग मैरिड एट दैट एज इज मेंटली स्ट्रेसफुल एंड फिजिकली स्ट्रेसफुल फॉर अ चाइल्ड। लेकिन हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब लोग 30 से 35 साल की उम्र में तो मर जाया करते थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी ना भाई, बहुत जोर की खांसी हो गई, दवाई काढ़ा कुछ मिला नहीं, लोग खांसी में मर जाते थे। Yes, Rajrajeshwar temple was very nicely built and it was a difficult task. And were the kings or rulers selfish? It depends on the perspective of who you are. If you are a nobility, तुम्हारे हिसाब से किंग बहुत अच्छा है, क्योंकि वो तुम्हें बढ़िया खाने के लिए रोटी पानी दे रहा है, तुम्हें बड़े बड़े उसने ग्रांट दे रखे हैं। तुम्हारे पास काम क्या है कि जब लड़ाई होगी तो किंग की आर्मी को कुछ लोग पहुंचाने। हम लोगों ने देखा था ना मनसब है ना, कि जो कैवेलरी प्रोवाइड करते थे। तो ऐसा होता था कि जब लड़ाई होती थी ना, तो लोगों को फोन किया जाता था। जैसे अब फोन, अब एग्जैक्टली अब तुम लोग वो भी लिख दोगे, मतलब लोगों को एक मैसेज भेजा जाता था कि लड़ाई हो रही है, वी नीड फोर्स। तो छोटे छोटे एरिया में, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम द क्वीन ऑफ सम किंगडम, मेरे पास डायरेक्टली 500 लोग हैं, लेकिन मेरे पास 25 अलग गढ़ हैं जिसके अंदर मेरे ऑर्डर पे लोग काम कर रहे हैं। मैं सबको मैसेज भेजूंगी कि हम लड़ाई कर रहे हैं, अपनी फोर्स यहाँ पे भेजो। सब अपनी 50-50 की फोर्स लेकर वहां पे मेरे लिए खड़े हो जाएंगे। ओके, यस, बाल, किड, बॉय, वट एवर यू आर डिस्कसिंग। इफ द मनसब डिसीव द किंग, तो जब लड़ाई हो जाती थी ना, तो बाद में उस मनसब की हो जाती थी ऐसी की तैसी। कई बार ना ये जो गवर्नर्स हुआ करते थे, इफ द रूलर्स आर वीक, वो लोग करते थे रिवोल्ट कि नहीं हमें तुम्हारी नहीं सुनना, तुम कौन,
तो जब ऐसा होता है ना तो दो तरीके होते हैं, या तो रूलर को वो गवर्नर या जो उसका सबऑर्डिनेट होता है उसे छोड़ देना पड़ता है कि ठीक है भाई तू तेरा देख ले। हम देखते हैं ना एम्पायर पहले बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर कभी छोटे हो जाते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं। ये सब ना फोर्स की बात है। अगर मान लो मैं बहुत अच्छे से रूल कर रही हूँ, मेरा रूल आयरन फिस्टेड है, हर कोई मेरे से डर रहा है, तो फिर जब मैं बुलाऊंगी तो अभी अगर मैं तुम्हें फोन करके बोलूं कि नहीं तुम मीटिंग में आओ, तो तुम में से कुछ लोग होंगे जो नहीं आएंगे, लेकिन ज्यादातर आ जाओगे क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है अरे बाप रे मैम का फोन आ गया अब तो मुझे जाना पड़ेगा। दैट इज द मेंटालिटी। अब भाई हम जो है अथॉरिटी को अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। अब आप ये बोल रहे हो किंग्स और रूलर सेल्फिश होते हैं, तो पहले जो किंग्लिश सिस्टम हम लोगों ने देखा उसमें ये था कि बेसिकली लोगों के बीच में से एक इंसान को अपर पोजीशन दे दी जाती थी कि ओके इट इज योर टास्क टू टेक डिसीजंस, इट इज योर टास्क टू फाइट। धीरे धीरे करके जो है ये पोजीशन इतनी कॉन्सेंट्रेटेड हो गई कि टैक्स जो था वो केवल किंग की मर्जी से ही खर्च हो रहा है। उसके घर पे पार्टी हो रही है, जो टैक्स दे रहे हैं उसके घर पे खाने को रोटी नहीं है। यस ऑफ कोर्स, नहीं तो क्या करेंगे भाई। एक कुछ ना मैसेज पहुंचाने के लिए भी करना पड़ता है। कई बार तुमने ऐसा देखा होगा कि किसी एक बच्चे को बहुत ही बुरी डांट पड़ती है क्लास में, मतलब बहुत ही तबीयत से डांट पड़ती है ना। जब उसे डांट पड़ती है ना सब सीधे हो जाते हैं एकदम से, सबको ऐसा लगता है कि अरे बाप रे अगर मैंने भी ऐसा करा मुझे भी डांट पड़ जाएगी। तो ये क्या हुआ कि डाटा एक को, मैसेज सबको पहुंच गया। तो अगर तुमने एक मनसब को किल कर दिया तो सारे मनसब समझ गए कि यार अगला अगर मैंने ज्यादा मुंह चलाया तो मेरा भी हो जाएगा। तो लोग जो है डर के रहते। देखो ये सारी चीजें जो है ना सबका मिक्स रहता है। आपकी पॉलिटिकल प्राउएस कितनी, आप कितना खौफ, अब खौफ का भी ना बैलेंस होना चाहिए। अगर खौफ ज्यादा हो जाएगा, मैं अगर रोज आके सबको डाटा करूंगी तो फिर उसका मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। फिर तो सबको ऐसा लगेगा अरे ये तो रोज चिल्लाती है, क्या फर्क पड़ता है। तो डांट भी, मार भी, एग्जीक्यूशन भी, किलिंग भी, सब चीजें टाइमिंग देख के करनी पड़ती है भाई। पॉलिटिकल साइंस एक अलग सब्जेक्ट है, एक अलग दुनिया है कि आप कैसे लोगों पे राज करते हो। राजनीति शास्त्र जिसे कहते हैं सालों से चला आ रहा है दैट हाउ कैन यू रूल पीपल, कि लोग खुश भी रहें, लोग सही से भी रहें और आपकी पावर भी बनी रहे। ये सब चीजों का एक बैलेंस बना के आपको रखना पड़ता है। एंड हाउ यू डू दैट इज हाउ यू आर डिफाइंड एज लीडर। जैसे ग्रुप बनाते हैं कभी, यू एट मारिंग समवन, मारिंग क्या होता है मारिंग कैसे होगा यार, ये तो तूने दोनों मिक्स कर दिए। बीटिंग समवन, हाँ कितना तो मैंने किसको मारा था मैंने, तुम्हारी क्लास में किसी को तो मारा था मैंने। बहुत अच्छे से तो खैर मैं मार ही नहीं सकती, मुझसे मारा ही नहीं जाता है, लेकिन यार थोड़ा बहुत एक आध, अरे ऐसे ही चलते फिरते एक आध टप्पू तो मारना पड़ता है, नहीं तो तुम लोग भूल जाते हो कि मैं टीचर हूँ। वो तो थोड़ा सा करना ही पड़ता है रह रह के। एक दिन डांटना और एक दिन मारना चाहते हो, अरे तुम लोग आओ स्कूल में, रोज रोज यही करूंगी मैं। 5 को रोज खड़ा करूंगी, आज तेरे को डांटना है, फिर 5 को खड़ा करूंगी, आज तेरे को मारना है, आज तेरी बारी, आज तू पिटेगा, आज तेरी बारी है तो डांट खाएगी। See, kings did not order farmers to serve them. Farmer और king की जो रिलेशनशिप हुआ करती थी, it was more like tax based. कि तुमने 3 बोरी गेहूं उगाया है तो 1 बोरी मुझे दो, 1 बोरी तुम रखो और 1 बोरी ट्रेड करो। मोस्टली सर्विस जो होती थी ना वो क्राफ्ट्समैन की हुआ करती थी। जैसे ये जो तानसेन है, इनको ग्वालियर से बुलाया गया था कि तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो, आओ हमारे यहाँ गाना गाओ। तो तानसेन फिर क्या करते थे कि अकबर के लिए गाना गाते थे, फिर अकबर ने जब बोला तो उनके लिए फिर गाना गाते थे कि आज ये वाला गाना सुनाओ, आज वो वाला गाना सुनाओ। जैसे कि अपने मोबाइल में हम बजाते हैं वैसे तानसेन को अकबर बजाया करते थे कि आज तुम ये गाना सुनाओ, आज ये राग सुनाओ, आज ऐसे करेंगे। तो मोस्टली जो क्राफ्ट्समैन होते थे ना, दे यूज्ड टू वर्क डायरेक्टली अंडर द ऑर्डर, और फार्मर्स वगैरह को ऐसे सच ऑर्डर देते नहीं थे। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, नाइस। इसीलिए तुम लोग ना मेरे बोलने का कुछ काम नहीं करते हो, दोस्ती यारी में सब भूल जाते हो, होमवर्क नहीं करके लाते हो।
देखो उस टाइम को ना थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, ये सोचो कि उनके पास क्या है क्या नहीं है। उस टाइम पर बच्चों के ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ करती थी, मतलब बीइंग अ टीनेजर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, क्योंकि ना तुम बड़े हो पाए हो ना तुम बच्चे रह गए हो। बहुत सारे काम हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम ऐसा थोड़ी था कि 6 घंटे का स्कूल और तुम्हें तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, बहुत सारे काम है तुम्हारे पास। और जो आर्किटेक्चर की जो हम बात करें, जिससे हम बहुत भटक के इधर से उधर पहुंच गए, कि आर्किटेक्चर में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये देखना है कि अभी हम लोग किस तरीके के घर में रहते हैं। अच्छा, कितने लोगों ने गेल के क्वार्टर देख रखे हैं, नए और पुराने दोनों, फेज 1 और फेज 2 दोनों, है ना। अब देखो जो फेज 1 के घर हैं और जो फेज 2 के घर हैं, उनके कंस्ट्रक्शन में तुम डिफरेंस देख लो। लगभग मेरे ख्याल से 20 साल का डिफरेंस है। मैं रहती हूँ फेज 1 में, मेरा घर लगभग 25 साल पुराना है, और जो फेज 2 के घर है वो मेरे ख्याल से 5, 6, 7 या ज्यादा से ज्यादा 10 साल पुराने हैं। तो तुम दोनों के कंस्ट्रक्शन की सेटिंग में फर्क देख लो कि ना कंस्ट्रक्शन कितना अलग है, मटेरियल अलग है, डिजाइन अलग है। अब देखो जब 20-25 जब 10-15 साल में कंस्ट्रक्शन की टेक्निक में इतना फर्क आ गया, तो हम लोग तो जो है इस स्ट्रेच की बात कर रहे हैं 200-200 300-300 साल के कंस्ट्रक्शन। भाई इंप्रूवमेंट होता है टाइम के साथ, नए नए जो है लोग तरीके ढूंढते हैं, इधर उधर से ढूंढ कर लाते हैं कि अरे नहीं अगर हम ऐसा बनाएंगे इट विल बी बेटर, ऐसा बनाएंगे ये और स्ट्रांग होगा। तो जब हम ये मुगल और इंडियन आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे मेन चीज है आर्च। ये जो आर्च बनता है ना, आर्च सबसे मेन चीज है। ये लेकर आए थे मुगल कि ना ये आर्च जैसा बनाएंगे। what are labor do what the labor are doing, the tools shown and the means of carrying stone। बेटा मैं तेरा सवाल नहीं समझ पाई नितेश। आर्च देखो यहाँ पर तो मुझे कहीं कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, मैं तुमको एग्जांपल दिखाती हूँ। नेक्स्ट क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे ना ये दोनों आर्क्यूएट और ट्रेबिएट स्ट्रक्चर, फोटोज भी दिखाऊंगी मैं तुमको। नितेश एक बार तेरा सवाल पूछ ले, फिर मैं जाती हूँ क्योंकि क्लास का टाइम हो रहा है। बेटा आर्च के बारे में हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा समझाने के लिए। मजा आ जाएगा अगर टाइम ट्रेवल होगा तो। सबसे पहले तो मैं टाइम ट्रेवल करूंगी बैक टू क्लास 6th और 7th और खुद ही को पढ़ा लूंगी, क्योंकि मुझे 6th और 7th में किसी ने कुछ पढ़ाया ही नहीं, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे एक बार फिर से पढ़ना पड़ता है। मुझे मुझे 9th 10th का पूरा कोर्स याद है, मुझे कुछ याद नहीं है 6th 7th 8th में मैंने क्या पढ़ा। बहुत मुश्किल होती है 6th 7th 8th को पढ़ाना। नितेश बेटा एक बार मुझे बोल के बता तेरा सवाल क्या है। हाँ लक्ष्य, वी विल डेफिनेटली एक्सप्लोर दैट। वो सब तो बेवकूफ है ना जो इतने फिजिसिस्ट बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में, हम ही लोग यहाँ पे टाइम ट्रेवल सॉल्व कर लेते हैं। नितेश बेटा तेरा सवाल मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। मैम हाँ 18 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकते तो बच्चों से ये क्यों कहते हैं कि तुम सारे सब्जेक्ट्स लर्न करो? बेटा देखो हमारे टाइम पर क्या था कि है ना, टीचर हमारे पास कोई टीचर ही नहीं था पढ़ाने के लिए, हमने ना बस एग्जाम देके पास हो गए। सिचुएशन अलग अलग होती है, मैं तो तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो तुम अगर मुझसे नहीं पढ़ोगे तो मुझे तो बहुत गुस्सा आएगा कि मैं तो तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो। यू हैव अ जोक। ठीक है, तुम्हारा जोक ना मैं नेक्स्ट क्लास में सुनूंगी, क्योंकि तुम लोगों को अगली क्लास लेनी है। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। अच्छा डिस्कशन चल रहा है, अगली क्लास में और करेंगे। थैंक यू बेटा। सायरा। सायरम मैम। सायरम बेटा सायरम। सायरा मैम। सायरम बेटा।